dear students, welcome in science class. I hope you all are well at your places and doing well. So students, till now we have discussed about the indicators that are the solution that gives different color in acidic or basic solutions. And we have also understood that on dilution there is decrease in the concentration of H positive aqueous or OH negative ions in the solution. Okay, this much we have understood. Now, can we find out the amount of these ions present in a solution? Can we calculate? Yes, we can. So, this is our today's topic. That is, how strong are acid or base solution? That means, how many ions are present in them? Okay, but before that, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing this topic. Okay, you will be able to define pH and universal indicator. You will be able to differentiate between strong acid, weak acid and strong base or weak base. You will be able to test the pH values of given solutions by using pH paper. And you will be able to appraise the importance of pH in everyday life after completing the topic. Okay, so these are your learning outcomes, okay, that you are going to achieve. So students, let's start with the today's session. How strong are acid or base solutions? That means we have to find the amount of the ions present in the solution. This we can done by using universal indicator. Okay. So what is it? What is universal indicator? It is a mixture of several indicators. Mixture of several indicators that shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in solution. Okay, what is universal indicator? It is a mixture of several indicators that gives different colors. अलग-अलग colors आते हैं with different solutions that are having different H positive ions concentrations. Okay, so students, to why we are using it? Okay, हम इसको क्यों use कर रहे हैं? Because अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनका अमाउंट अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देयर पीएच. हम उसके पीएच फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीएच? पीएच का क्या मीनिंग है? दिस स्मॉल लेटर पी मीन्स पोटेंस. Potence. Okay, and in German language its meaning is power. Potence means power, and H refers to concentration of H positive ions in any solution. Means pH is the power of or concentration of H positive ions in any solution. So it's a value, it's a number. Okay, that is pH. इसको आप pH कहते हैं. So बेटे, to calculate the pH और इस pH को find out करने के लिए, one, we are having the universal indicator, and generally that we are using in our labs, that is the pH paper. ठीक है, सॉल्यूशन भी है, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द पीएच पेपर. ठीक है, वो भी इसी की हेल्प से बना हुआ है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड इट ऑल्सो शोज डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट concentrations of H positive ions.
ओके, सो बेटे इस पीएच पेपर को यूज करके हम फाइंड आउट क्या करते हैं, पीएच फाइंड आउट करते हैं। तो पीएच मेजर करने के लिए वी आर हैविंग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की अलग अलग पीएच होएगी, सो वी आर हैविंग वन पीएच स्केल। साइंटिस्ट ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है दैट इज नोन एज पीएच स्केल। उसकी हेल्प से हम पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मैचिंग देयर कलर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल कैसा है and how it works. So students, it's a scale that is used for measuring H positive concentration in ions concentration in a solution. ठीक है, so with the help of pH paper we will be able to find out the pH of the solution. Okay, so students, this pH scale ranges from, इसकी रेंज कितनी है, 0 to 40. ठीक है, रीडिंग कितनी है इस स्केल के ऊपर, 0 to 40 एंड एट द मिड पॉइंट दैट इज 7 pH जो होती है ना बेटे, दैट इज ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो न्यूट्रल होता है तो उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7। 0 to 7 की रेंज में क्या आता है, एसिड। ओके, एंड 7 के बाद अप टू 14 क्या आते हैं, बेस। जिनकी वैल्यू 7 के बाद टिल 14 तक आएगी हम उनको कहते हैं दैट आर बेसिक। ठीक है, और यहां से उनकी पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। और जिनकी 7 से कम होती है दैट इज एसिड। ठीक है, हम उनको कहते हैं दैट आर एसिडिक। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, When we move from 0 to 7, अगर आप 0 से 7 की तरफ को जा रहे हो तो एसिडिक नेचर विल डिक्रीज। ये ऐसे उल्टा कर दो, when we move from 7 to 0, ठीक है, नीचे की तरफ को जा रहे हो, वैल्यू कम कर रहे हो तो एसिडिक नेचर विल इंक्रीज। ओके, दैट मीन्स अगर पीएच स्केल पे जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इफ द पीएच वैल्यू इज 1 दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मतलब ज्यादा एसिडिक है। और अगर 6 होएगी दैट मीन्स कम एसिडिक है। ओके, वी आर गिविंग द टर्म्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 14, जब आप 7 से 14 की तरफ को जाते हो देन द बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। अंडरस्टूड? 7 से 0 की तरफ को मतलब नीचे को जाते हो, पीछे को जाते हो तो एसिडिक नेचर विल इंक्रीज। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 to 14 मतलब आप नंबर बढ़ाते हो तब बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ओके, और व्हाट वी कैन से दैट व्हेन एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग मीन्स देयर इज इंक्रीज in H positive aqueous ions, isn't it? Yes, है ना? एसिडिक नेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, देयर इज इंक्रीज इन द H positive aqueous ions। ओके, और बेसिक नेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, देयर इज इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव aqueous ions। ओके बेटे, और आप क्या कह सकते हो अगर आपने सिंपल एक ही उसमें बात करनी हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 14 क्या बोलोगे, व्हाट डू यू से व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 14? We will say, yes, we will say that when we move from 0 to 14 there is decrease in H positive aqueous ions concentration। जब आप 0 से 7 की तरफ को जाओगे तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होएगी और किसकी इंक्रीज होती जाएगी, OH नेगेटिव आयंस की। ठीक है, ऐसे हम 7 से 0 की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 to 7, जब आप 0 to 7 जाते हो तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। अंडरस्टूड? हाँ जी बेटे, तो कुछ इस तरह का होता है अपना पीएच स्केल। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से डिफरेंट कलर्स के शेड्स बने होते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं,
हम पीएच पेपर लेते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर ऐसी रीडिंग बनी होती है कवर के ऊपर, एंड वी विल डिप द पीएच पेपर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड देन आफ्टर व्हेन द कलर चेंजेस देन वी विल मैच हियर। तब हम उसको इधर मैच करके चेक कर लेते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो सी हियर 0 to 7 एसिडिक एंड 7 से 14 रेंज है बेटे, रेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज अल्केलाइन, एंड 7 refers to neutral. If the pH is 6.5, 6.2, then we will say that it is slightly acidic in nature. Okay, understood? Now see the different colors. Colors दिख रहे हैं, ठीक है, रेड, डार्क रेड, फिर धीरे धीरे रेड देखो लाइट होता जा रहा है, ऑरेंजिश मिक्स हो गया, येलोइश, देन ग्रीन, देन ग्रीन में थोड़ा सा क्या ऐड होता जा रहा है, ब्लूइश कलर, एंड एट द लास्ट वॉयलेट, डार्क ब्लू, वॉयलेट, ये कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज कलर्स आर अकॉर्डिंग टू देयर नंबरिंग, ओके, स्केल के अकॉर्डिंग इनकी शेड्स दिए हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is acidic, and 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, this is for alkaline और basic solutions, ठीक है। अगर बेटे pH पेपर को सॉल्यूशन में डाल के if we will get the color somewhat like this, हमें इसकी तरह आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी pH कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर डिप करने पे कलर जो है वो ब्राइट रेड या डार्क रेड आता है, ठीक है, तो देन वी विल से उसकी pH 1 है, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है, दैट इज मोर एसिडिक, ठीक है। जो ज्यादा एसिडिक होता है हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वी विल डिफाइन, हम उसको डिफाइन करते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन विद नंबर एंड देयर कलर्स, ठीक है बेटे। तो ये कम एसिडिक हो गया, सॉरी ये ज्यादा एसिडिक है, और 4 वाला कम एसिडिक है। अगर ग्रीन कलर आता है तो दैट इज न्यूट्रल, कि वो उसकी pH कितनी है, 7 है। अगर कलर जो है वो थोड़ा ब्लूइश मिक्स आता है, ठीक है, या डार्क वॉयलेट आता है, दैट मीन्स वो ज्यादा बेसिक है, ओके। और 11 आता है, यहाँ पे कलर शेड मिक्स करता है, तो वो कैसा है, कम बेसिक है। Understood? So in this way we can use this pH scale and pH paper to calculate the pH of the solutions. Look at here, इस तरह की pH paper strips आती हैं, ठीक है, that we will use in the labs, और उनके कवर के ऊपर ऐसे स्केल पूरा बना होता है with according to the color patterns, ठीक है। We will take the pH paper, dip it in the solution and match the colors on the given scale, ठीक है, उसके ऊपर चेक करते हैं, and we will find out the pH of the solution. So easy it is, okay. So in this way we can calculate the pH of the solutions. Yes students, now give me the answer of this question. आप कैसे बोल सकते हो कि कोई ज़्यादा एसिडिक है, हम कह रहे हैं ना यहाँ पे pH जो है वो डिफरेंट रेंज की आएगी विद डिफरेंट कलर्स, है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो, हाउ विल यू गिव और से एनीथिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस, कि ये कम एसिडिक है, ये कम बेसिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, आप कैसे बोल सकते हो, दैट वी कैन से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। या तो आप H पॉजिटिव एक्वस आयंस के लिए बोलोगे इन द केस ऑफ एसिड, और यू कैन से विद द OH नेगेटिव आयंस इन द केस ऑफ बेस, ठीक है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द आयंस, कि कितने आयंस उसमें प्रेजेंट हैं, वी कैन से कि ये कम एसिडिक है और ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। सो वी कैन यूज द टर्म्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak acid, strong base and weak base, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे, वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, एसिड क्या है,
जो आयोनाइज हो जाता है दैट गेट आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव aqueous ions. तो what does it mean strong? Strong means that gives more number of H positive aqueous ions. ठीक है, जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है और मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव एक्वस आयंस प्रोड्यूस करता है, बनाता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे. सो व्हाट डज इट मीन वीक? वीक मीन्स इट फॉर्म्स लेस नंबर ऑफ और दैट गिव्स लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स दैट गिव मोर नंबर ऑफ H positive aqueous ions, that gives more number of H positive aqueous ions. Weak acid means that gives less number of H positive aqueous ions. That is about the acids. Same way we can differentiate strong base and weak base. Strong base means that gives more number of OH negative aqueous ions, and weak base means that gives less number of OH negative aqueous ions. Understood? So on the basis of amount of number of concentration of ions, we can differentiate acids into strong acid and weak acid, strong base and weak base. ठीक है, आप उनको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देगा? दैट मीन्स ये कंप्लीटली क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड. कंप्लीटली आयोनाइज्ड. ठीक है, और ये पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम होंगे. Same with the strong base, completely ionized, so the number of OH negative ions will be more, and this is partially ionized, that means OH negative aqueous ions की concentration कम. Understood? So बेटे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं. कैसे? By using one strong acid and weak acid of same concentration. For example, we are having two acids, HCl and acetic acid. ठीक है, एसिटिक एसिड, द फॉर्मूला इज CH3COOH. ठीक है, ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन है, से 1 मोलर. वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी और मोलर वी कैन से. ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या डाल दिया है? मेटल डाल दिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से जिंक मेटल हम इन दोनों में डाल दिए. So you will see or you will observe different amounts of hydrogen gas will liberate. है ना? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है. ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. तो आप देखोगे कि जैसे ही आपने जिंक को HCl में डाला, जल्दी से बबल्स बनने शुरू हो गए और लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस विल प्रोड्यूस्ड. और इसमें क्या होगा? फ्यू सेकेंड्स के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा और बबल्स भी इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे, मतलब विग्रस रिएक्शन नहीं नजर आएगा. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, एंड दैट मीन्स वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. ये जल्दी जल्दी से डिसोशिएट हुआ, बहुत सारे आयंस बनाए, इन्होंने इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, रिएक्शन हो गया, H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा बन गए, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन की फॉर्म में लिबरेट होता गया. अंडरस्टूड? सो आप बोल सकते हैं कि HCl जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड जो है इट्स अ वीक एसिड. नाउ सी द अनदर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. Another examples, for example, H2SO4, sulfuric acid, HNO3. These are examples of strong acid. Weak acid, acetic acid, phosphoric acid, H3PO4, okay, citric acid, oxalic acid, lactic acid, that are edible acids. जितने भी आपके organic acids हैं वो सब weak acids हैं. Okay. Examples of strong base: sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide and calcium hydroxide. Weak base are
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम बेटे, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, इट्स अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, एंड NH3 इट्स अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Okay, so these are the examples of various strong acid, weak acid, strong base and weak base. ठीक है. So students, let us find out the meaning of completely ionized and partially ionized. ठीक है, बच्चों को ये थोड़ा confusing लगता है. So let's find out the difference. Let's assume that we are having two solutions. Okay, CH3COH in one beaker and HCl in another beaker. Solutions लिए हैं, ठीक है, मीन्स आपने इनके एक्वस ले लिया. चलो, नाउ व्हाट डू यू थिंक, जब आप इसमें सॉल्यूशन लोगे, सो इट इज हैविंग वन बिग HCl मॉलिक्यूल ओनली, एक ही मॉलिक्यूल होगा, नहीं ना, इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ, बहुत सारे इसमें क्या होंगे बेटे, HCl मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, सेम विथ एसिटिक एसिड, द सॉल्यूशन इज हैविंग many molecules of acetic acid. Okay, अब पार्शियली और कंप्लीटली आयोनाइज्ड का क्या मतलब है. सो स्टूडेंट्स, HCl में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इन दीज एसिड्स ऑल द मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में है, दे ऑल गेट डिसोशिएट इनटू आयंस. H पॉजिटिव एक्वस आयंस में सब डिसोशिएट हो जाएंगे. अगर सब डिसोशिएट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो दैट लीड्स टू मोर नंबर ऑफ आयंस, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, एंड आप इसको क्या बोलोगे फिर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड और कंप्लीटली डिसोशिएट. ओके, और आप इस केस में क्या करोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड नहीं होते हैं. सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट आयोनाइज्ड एंड सम ऑफ विल नॉट गेट आयोनाइज्ड. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट्स अ weak acid. Okay, the molecules get partially ionized. In this completely ionized means all molecules will get ionized, and here only the few molecules will get ionized. Okay, so now let's move to the next topic, everyday life. ठीक है, हमें मालूम नहीं है, but we know that कि एसिडिक और बेसिक मीडियम या कुछ ये चीज़ें होना हमारी एवरीडे लाइफ में, हम ये सुनते रहते हैं और बात करते भी रहते हैं, बट कभी हमने उसको पीएच के साथ जोड़ के नहीं देखा. सो टुडे वी विल लुक इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, दैट इज, आर plants and animals pH sensitive. क्या इनके ऊपर pH चेंज का कोई फर्क पड़ता है? यस, यस. आर ह्यूमन बॉडी और इवन आर बॉडी, एनिमल्स बॉडी वर्क इन द pH रेंज ऑफ, ऑप्टिमल रेंज ऑफ 7 to 7.8. ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है इस pH रेंज में 7 to 7.8, स्लाइटली अल्केलाइन. ओके, अदरवाइज बेटे आपको पता होना चाहिए, ब्लड जो हमारा ह्यूमन, हमारे अंदर जो ब्लड है उसकी pH जो है दैट इज स्लाइटली 7.4, स्लाइटली अल्केलाइन, हल्का सा. ठीक है, दैट इज 7.4. ओके, और हम मोस्टली इसी रेंज में जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हैं, 7 to 7.8. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द एसिड रेन? यस, सुना होगा आपने.
एसिड रेन कैसे बनती है? बाय द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज, है ना, गेट मिक्स्ड विद द रेन वाटर. तो उसमें वाटर के साथ मिलके वो क्या बना देता है? एसिड. एसिड बना देता है. फॉर एग्जाम्पल CO2 जब वाटर के साथ मिलेगा तो इट विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड. तो जब आपके ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिक्स करेंगे दे विल फॉर्म एसिड. सो ऐसी रेन को आप क्या कहते हो? एसिडिक रेन. तो अब क्या कहते हो? पीएच किस तरह से चेंज होगी? पीएच जो है वो वाटर की, वैसे आप रेन वाटर को प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कहते हो. रेन वाटर दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स आपका रेन वाटर जो है वो उतना नो मोर प्योर इट इज, उतना प्योर नहीं रह जाता. तो आप क्या कहते हो कि पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? अदरवाइज आई विल टेल यू द पीएच ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर की पीएच भी कितनी है? 7.4. सो अब सोचो एसिड रेन की पीएच क्या होगी? 7.4 से ज्यादा होगी या 7.4 से कम होगी? ये प्योर वाटर स्लाइटली अल्केलाइन है. अब आपकी रेन एसिडिक हो गई, दैट मीन्स पीएच वैल्यू इससे कम हो जाएगी. एसिड का बढ़ना मीन्स पीएच कम होना. ये हमने डिस्कस किया ना कि अगर पीएच नंबर कम होगा, पीएच वैल्यू कम होगी, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो जब आपकी रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 हो जाती है देन इट इज सेड टू बी एसिडिक रेन. ओके, व्हेन द pH of rainwater is less than 5.6 it is called as acid rain. हम इसको क्या कहते हैं? acid rain कहते हैं. 1 mark question may be asked in the exam, so you have to write the exact value that is less than 5.6. okay, so अब क्या होगा? what is the harmful effect of this acid rain? ठीक है, जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाएगी तो रिवर वाटर की पीएच को भी कम कर देगी. एसिड है तो उसको भी एसिडिक बना देगी, तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ. अंडरस्टूड? सो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो दे आर वेरी पीएच सेंसिटिव. ठीक है, दे आर नॉट एबल टू bear the change in pH. Okay, now move to the second point, that is pH of the soil, or we can say that plants are also pH sensitive. ठीक है, तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल्स ऑफ डिफरेंट pH. किसी को एसिडिक चाहिए, किसी को अल्केलाइन चाहिए, किसी को न्यूट्रल चाहिए. ओके, सो टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द सॉइल व्हाट वी विल डू? वी विल टेक द सैंपल ऑफ सॉइल. ठीक है, सैंपल ऑफ सॉइल वी विल टेक एंड देन डिसॉल्व इट इन वाटर एंड फिल्टर इट. वाटर में डालो, मिक्स करो, फिल्टर कर दो. जो आपने फिल्टर किया, डिप द पीएच पेपर को डालो एंड देन मैच विद द पीएच स्केल एंड यू विल गेट टू नो द पीएच ऑफ द सॉइल. ठीक है, तो आप अपने एरिया की सॉइल की पीएच जो है वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट द एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अदर प्लैनेट्स? वन एग्जाम्पल इज द वीनस. वीनस प्लैनेट है ना, उसका एटमॉस्फेयर जो है वो वाइट और येलोइश क्लाउड्स का बना हुआ है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ओके, इन देयर एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये. सो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? थिंक अबाउट इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ pH, दैट इज pH in our digestive system. How pH in our digestive system
Yes. As we have studied in life processes chapter 6, okay, in our stomach, gastric glands are there, and that secretes gastric juice, and bete the pH of gastric juice is about 1.2. ठीक है, कितनी pH है? 1.2. आप बता सकते हो ये एसिडिक क्यों है? 1.2 है ना, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ HCl. गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है. ठीक है, आपको मालूम है HCl हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. पैप्सिन एंजाइम वो तो इसी की प्रेजेंस में वर्क करता है. ठीक है, और म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिडिक एक्शन ऑफ HCl. बट इन द केस ऑफ इनडाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता है या आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हो, ओवर ईटिंग हो जाती है कई बार. सो इस टाइम क्या होता है, आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इंक्रीज्ड एंड दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. इसकी वजह से क्या होती है? पेन एंड इरिटेशन होती है, जलन होती है स्टमक में. ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए लोग क्या खाते हैं? लोग स्लाइटली अल्केलाइन सब्सटेंसेस या केमिकल्स लेते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एंटासिड्स. ठीक है बेटे, प्रोडक्शन ऑफ HCl, जब ड्यूरिंग इंडाइजेशन द लार्ज अमाउंट ऑफ या मोर अमाउंट ऑफ HCl विल प्रोड्यूस्ड एंड दैट कॉजेज एसिडिटी. आप इसको एसिडिटी कहते हैं, सुना होगा आपने एसिडिटी, एड भी देखी होगी टीवी में, है ना. एसिडिटी होगी है, इनो लेके आओ. ओके, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड. जो एसिडिटी के अगेंस्ट आप केमिकल यूज कर रहे हो दैट इज स्लाइटली अल्केलाइन इन नेचर. अल्केलाइन होना चाहिए ना, तभी तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा. सो दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एंटासिड्स. ओके, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड इज बेकिंग सोडा. दैट इज स्लाइटली alkaline in nature. And another example is milk of magnesia. What is milk of magnesia? That is magnesium hydroxide. Okay, pH change as the cause of tooth decay. Is there any effect of pH change on tooth decay? Yes. The tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. जब आपके माउथ की pH 5.5 से कम हो जाएगी then it leads to tooth decay. ओके, और pH of rain water, कब बोलोगे आप कि वो रेन वाटर जो है दैट इज एसिडिक? कब बोलोगे? व्हेन द pH इज लेस देन 5.6. और टूथ डिके की कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5.5. ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. वन वर्ड क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट वैल्यू. 5.6 फॉर एसिडिक रेन, लेस देन 5.6, एंड फॉर द टूथ डिके इट इज लेस देन 5.5. अब इतनी कम pH कैसे हो जाती है? ठीक है, माउथ में इतनी कम pH कैसे हो गई? सो स्टूडेंट्स, you know that our tooth is covered with the enamel, that is the tooth enamel, and it is the hardest substance. Okay, and it is made up of calcium hydroxyapatite. Calcium hydroxyapatite, and it's a crystalline form of, or you can say it is also a form of calcium phosphate. ठीक है, आपका टूथ इनेमल इतने हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ है फिर भी ये करोड हो जाता है. इट लीड्स टू टूथ कैविटीज. कैसे हो जाती हैं? सो व्हाट हैपन्स? ठीक है, जब pH लेस देन 5.5 हो जाएगी ना तब इसका करोजन स्टार्ट हो जाएगा.
It will leads to tooth cavities, okay, or tooth decay. ठीक है, what happens when you will eat anything, जब आप कुछ भी खाते हो, that stick between the teeth, ठीक है, this we have done discussed in chapter 6 also, okay, the food particles or the sugar that lodged between the teeth, जो आपके teeth के बीच में ऐसे फंस जाता है, okay, on this food or lodged food, bacteria will feed, bacteria इसके ऊपर feed करता है, and bacteria convert sugar into acid. तो जितना ज़्यादा एसिड बनता जाएगा उतनी pH कम होती जाएगी, और जैसे जैसे pH कम होती जाएगी तो मीन्स एसिडिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, तो दैट लीड्स टू द करोजन ऑफ दिस हार्ड सब्सटेंस, ओके, सो इट लीड्स टू द टूथ डिके. इस तरह से कैविटीज हो जाती हैं. अंडरस्टूड. सो टू प्रिवेंट दिस व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें आफ्टर ईटिंग वी हैव टू क्लीन आवर माउथ, ओके, वी हैव टू यूज द टूथपेस्ट that is basic in nature, toothpaste that is basic in nature. अगर आप बेसिक इन नेचर वाला टूथपेस्ट यूज करोगे इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड, तो एसिड का अमाउंट बढ़ेगा नहीं, pH लेस देन 5.5 नहीं होगी और टूथ डिके नहीं होगा. ओके, सो इन दिस वे pH also affects our tooth decay. Understood? लोअर देन 5.5 pH होएगी, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा. द टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ दिस हार्ड सब्सटेंस. एंड कैसे pH कम हो जाती है, व्हेन वी ईट एनीथिंग, और शुगर जब हम खाते हैं, फूड पार्टिकल्स दैट रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ऑन दिस द बैक्टीरिया फीड, okay, and this bacteria converts the sugar into acid, and as the amount of acid will increase the pH value will decrease, and that leads to corrosion of this hard enamel. Okay, and we have to clean our mouth after every eating food, after every meal, and we have to use the toothpaste that is basic in nature. The next point is self defense by animals and plants through chemical warfare. क्या एनिमल्स और प्लांट्स भी केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग इट एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, येलो वेस्प, कभी काटा है इन्होंने? बहुत पेन होती है, इरिटेशन होती है. ओके, क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पेन एंड इरिटेशन? जब भी आपको कोई बी स्टिंग करती है या येलो वेस्प स्टिंग करती है, क्यों होती है इरिटेशन और पेन? स्टूडेंट्स, द मेन रीजन इज जब वो आपको स्टिंग करती हैं, दे लीव्स एन एसिड दैट लीड्स टू पेन एंड इरिटेशन. ओके, एंड दिस एसिड इज मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड, द formula is HCOOH. The common name is formic acid, or you can say formic acid. ठीक है, केमिकल नेम, कॉमन नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला. ओके, तो जब कभी आपको स्टिंग वो हनी बी काटती है या येलो वेस्प काटती है, चींटियाँ काटती हैं, ठीक है, दे लीव्स एन एसिड, वो एक एसिड छोड़ती हैं हमारी स्किन में, बॉडी में, दैट लीड्स टू पेन एंड इरिटेशन, दैट इज मिथेनोइक एसिड. सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस एसिड व्हाट वी विल डू, बताओ क्या करेंगे? वी विल यूज एसिड है ना, तो इसके अगेंस्ट हम क्या यूज करेंगे? माइल्ड बेस यूज करेंगे, ठीक है, और हल्का सा अल्केलाइन नेचर वाला केमिकल यूज करेंगे. एंड हियर द एग्जांपल इज बेकिंग सोडा, दैट इज लाइकली अल्केलाइन इन नेचर. ठीक है, अब ये तो हो गया एनिमल्स की बात. क्या प्लांट्स भी ऐसा कुछ मैकेनिज्म शो करते हैं टू रिलीज द एसिड? यस, in plants the example is of nettle leaves, NETTLE, nettle leaves. ठीक है, ये भी क्या करते हैं, इनमें भी क्या होते हैं? स्टिंग्स होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, दैट इंजेक्ट दिस एसिड
in the skin and cause burning pain. Okay, so these are nettle leaves. आपको दिख रहे हैं, ये देखो stinging here. ठीक है, आप इनके साथ एक बार टच तो करो, एसिड स्किन में निकाल छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे एंड यू विल फील पेन एंड इरिटेशन. बहुत इचिंग होती है. ठीक है, बहुत इचिंग होती है इससे. ठीक, पर बेटे देखो नेचर कितनी अच्छी है. नेचर ने अगर प्रॉब्लम दी है ना, इसका सॉल्यूशन भी साथ में ही दिया है. अलोंग विद दीज नेटल प्लांट्स, इसी प्लांट के साथ एक अनदर प्लांट ग्रो कर जाता है नेचुरली. ओके, दैट इज द डॉक प्लांट, DOCK, डॉक प्लांट. ओके, अगर ये एसिड सिक्रीट करता है एंड दैट इज बेसिक इन नेचर, वो अल्केलाइन इन नेचर है. ठीक है, तो आप क्या करो, उसको फटाफट से, अगर आपको कभी ये स्टिंगिंग नेटल लीव्स जो हैं ये कभी आपकी स्किन के साथ टच हो जाए, तो आप जल्दी से पास में जो डॉग प्लांट है, ठीक है, उसका लीव्स लो और उसको रगड़ लो. ठीक है, देन यू विल फील रिलीफ, दैट विल गिव रिलीफ टू यू. सी, ऐसे होते हैं डॉग प्लांट्स के लीव्स. ठीक है, तो आप इनको लो, दे आर माइल्ड अल्केलाइन इन नेचर और बेसिक इन नेचर, और रब करो एंड दैट विल गिव रिलीफ टू यू. दिस वे द नेचर प्रोवाइड्स रेमेडियल मेजर टू अस. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द pH, importance of pH in everyday life. Okay, so students, at the last, one small topic is there, that is about the acids. Okay, there are two types of acids, mineral acids and organic acids. Mineral acids that we get from the minerals of the earth. Okay, and the organic acids we will get from plants and animal. The examples of mineral acids are HCl, H2SO4, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid, carbonic acid. Okay, and among these, sulfuric acid is known as king of chemicals. Okay, because it is mainly used in industries for making important other chemicals. Okay, now here are the examples of organic acids that are present in different food items, okay, or in the animals that we have studied now. For example, in vinegar, the acetic acid is there, acetic acid, natural acids, okay, that are naturally present. Orange, citric acid, tamarind, tartaric acid, tomato, oxalic acid, sour milk, that is the curd, okay, lactic acid, lemon, citric acid, ant sting and nettle sting that we have studied just now, that is the methanoic acid or formic acid. Okay, so this is all about the today's session. Now I am going to share one video with you, okay, about the importance of pH. Okay, so enjoy the video. Take care. Bye bye. Yesterday's downpour was a respite from the long and scorching summer, and I could not resist the temptation of getting wet in the rain. After getting wet, I developed boils on my skin. Today, the doctor prescribed me medicine and said it is due to the pollutants that mix with rainwater and lower the pH of the water. Do you know what is meant by pH scale? Well, a pH is a scale that measures the concentration of hydrogen ions in a solution where P indicates potence of power. But what is the role of pH scale in our lives? Why we need to know the hydrogen ion concentration? Because living organisms cannot survive wide pH variation. For instance, the human body functions within an average pH spectrum of 7.0 to 7.8. But interestingly, only the digestive juice produced in our stomach is very strong hydrochloric acid with a pH value of 2.
During indigestion, when too much acid is secreted, it causes pain and irritation. Again, people suffering from hyperacidity or excess of acid tend to develop cavities in the teeth. But how? It comes up through the digestive tract and affects the teeth enamel by corroding it. The teeth enamel is made of calcium phosphate, the hardest substance of our body. The toothpaste, being basic in nature, neutralizes the acid, thereby protecting the teeth from decay. Not only humans but crops also require a certain pH value for its proper growth, and based on the pH value of soil, the nature of crop is determined. For instance, while citric fruits require a slightly alkaline soil for its growth, the growth of rice requires acidic soil. Again, for the growth of sugarcane, a neutral soil is required. Sorry, I digressed from what we were discussing. Yes, pollutants in rainwater lower its pH value. Actually, rainwater is always considered pure with a pH value of approximately 7. But pollutants like the oxide gases of sulfur and nitrogen dissolve in the rainwater and decrease its pH value, making it acidic. This is also called acid rain. This acid rain not only affects human skin but also endangers plants and aquatic life as it falls on trees and flows into the rivers, lowering the pH value of river water also. As a result of acid rain, trees dry up and the aquatic life fails to survive. So now you know why the pH value of rainwater decreases and its effect on the environment. But do you know the pH value of some common solutions? Well, here is a list. The pH value of blood is 7.3 to 7.5. Saliva 6.5 to 7.5. Stomach acid juice 1.0 to 3.0. Soft drinks 3.0. Seawater 8.5. Household ammonia 12.0. Tomato juice 4.0 to 4.4. So let's take a look at what we have learned so far about the importance of pH in everyday life.